Just wait 2 to 3 minutes, then we will start the second session. Okay. I think whiteboard is visible for all of you. Whiteboard is visible or not? Yes, sir, visible. Okay. So just 1 minute. Okay. So you just saw the rules for K-map simplification. Okay. Suppose here I am taking the 4 variable block for K-maps. Okay. So here like that. Okay. Sorry. सुनो सुनो सुनो, यहाँ पे कुछ थे ना, यहाँ पे रखेंगे मोबाइल ऐसे। क्या? This is for bar. You already know. Suppose here I have written this is AB.
and this is CD. So here this is 0 0 0 1 1 1 and 1 0, and here it is 0 0 0 1 1 1 and 1 0. So just few minutes ago I have written that is the groups may not contain 0. So for SOP it is not contain 0, and for POS groups may not contain 1. Okay, one thing, and we can group like 1 2 4 8 like that. Suppose here this is suppose is group. Okay, so here you can see we can club these two and these two, but when we are getting 4, so in that sense we will club 4. Okay, so here we will, because our aim is to get the highest number clubbing. So here for this you can club like that. Okay, or suppose here if we get 8, so here if we consider here and here separate, so in that sense is it for this group we got 2, and for this group 2, but if we club here the total, in that sense for one grouping we get the 4. So our aim is to get the highest number, so we will consider the 4 grouping here. Okay, so one thing that each group should be as large as possible. So the point number 3 is over. Now the point number 4, that is the cell containing one must group. Okay, so you can see that one cell containing one must group means one group you should, or you have to group at least one group. Okay, and group may be overlap. The point number 6, group may be overlap means here this is 1 1 1 1. Suppose you have like this is also we have. So in that sense, so this is a group and this is also a group. So here you can see this block is overlapped. You are getting the point? Yes, sir. So in K-map, sometimes you may get this type of sequence. In that sequence you have to consider the overlap. Okay, so suppose if we consider here, so for first this group, so what is the expression? What is the expression? For this group, what is the expression? Anyone just try. What is the expression for this grouping? There is two grouping, na? This is one grouping and this is also one grouping. So first tell me, for this small grouping, what is the expression? A bar B C bar D bar plus A bar B C bar D. कौन सा के लिए बोल रहा? स्मॉल वाला के लिए. स्मॉल वाला के लिए तुम क्या बोल रहा? A बार B C बार D बार. नहीं, अभी देखो कैसे होता है. ए बी हम देखें तो जो इस टर्म यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है सिर्फ एक ही रो पर है. ठीक है, तो एक ही रो मतलब यहाँ पर ए बी हम ये ए बी को डिनोट कर रहा है, ऊपर वाला को सी डी डिनोट कर रहा है. तो ए बी यहाँ पर ए एंड बी. सो यहाँ इसके लिए कौन सा होगा? ए बी. ठीक है, ए बी. सो ए बी मतलब यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर क्या होगा इसके लिए?
A bar B. A bar B. Very good. This is A bar B. Now, if we consider the column, so column, there is two columns. So this is the first column and this is the second column for these two. So for 0, 0 and 0, 1, for this we have to consider which digit or which place is common. So for this 0, 0 and 0, 1, what is the common or the same? 0, 0. 0, 0 means we will only follow particular this variable. 0, 0 here, 0, 0 means here the first variable is C. So here what is the expression from this C column? bar D. C bar D. D नहीं, हम D क्यों लेंगे? क्योंकि D का तो अलग है. D यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 1 है. I have said just that for this only whatever the same digit, we will just consider that particular variable. So here only 0 and 0, this is the same. There is the second is here 0 and this is 1, so it is not the same. So in that Yes, sense, sir. we only consider here the C. But here for SOP, this is 0 means C bar. C bar. Okay, so this is the expression for this small grouping. Now you just tell for the सर this ये जो रूल बताए अभी वो समझ में नहीं आया सर। कौन सा वाला? जो अभी बताया ना कि इसे ए बी में हम पूरा लिए बट हम सी डी में सिर्फ सी बार लिए, मतलब ये रूल कंफ्यूजिंग बोल रहा है ग्रुपिंग यहाँ तक पर समझ में आया। अच्छा, ग्रुपिंग तक समझ में आया सर ग्रुपिंग तक समझ में आया, बट ये ए बार बी सी बार क्यों हुआ, यहाँ पे डी मिस क्यों हुआ, ये बोल समझ रहे में नहीं आया। देखो यहाँ पर हम बोल रहे हैं, यहाँ पर हमको पैरामीटर जो हमको यहाँ पर वैल्यू जो हमको कंसीडर कर रहा है, तो यहाँ पर एक ही रो, दो वैल्यू तो टू पर ही, टू सेकेंड रो पर ही है, इसमें 0, 1। हेलो हेलो यस सर, आवाज आ रहा है आपको? अनुज, तो यहाँ यस पर सर, आवाज आ रहा है। सेम, ये सेम रो में है, 1 and 1, this is situated in the second row, first column, and second row, second column. Okay, so first if we consider the row in that sense, only there is no only AB, so AB there is only row, so only one row. सर A B bar C D सर। A B bar ना हम एक मिनट पहले हम अनुज का डाउट क्लियर कर रहे हैं, उसके बाद तुम्हारा हम बोल रहे हैं, ठीक है? ठीक है सर। तो यहाँ पर देखो एक ही रो है, तो एक ही रो है, इसी का लिए हम यहाँ पर सिर्फ जो ये वैल्यू जो कॉरेस्पॉन्डिंग जो वेरिएबल का वैल्यू है, ये हम ले रहे हैं, जिसका है 0, 1, ठीक है? हम ले रहे हैं, तो 0, 1 मतलब 0 के लिए A बार और 1 के लिए B। अब तक ठीक है अनुज? यस सर, यहाँ तक ठीक। इसका बाद ठीक है। उसका बाद तो ये तो रो एंड कॉलम से लिंक है, तो हम रो का एक्सप्रेशन हम निकाल लिया। अभी कॉलम का हम देखें तो इस ग्रुपिंग के लिए दो कॉलम लिंक्ड है, द फर्स्ट कॉलम एंड सेकेंड कॉलम। एम आई राइट? हेलो? यस सर। This is a second row, first column, this block, and this is a second row, second column. You are getting the point? Yes sir. So for this grouping, the column number 1 and the column number 2 is involved when we are considering the grouping column expression. We are trying to get the column wise expression. We already got the row expression, that is A bar B. Okay sir. Now if we consider the first column and the second column, in that sense, here you can see the first column it is 0, 0, and the second column it is 0, 1. Till now up to this it is clear? Yes sir. So for this there are two columns. So here the concept is
we have to follow the same whatever the common in between these two 0 0 and 0 1. So in between 0 0 and 0 1, what is the common? 0. 0, because in the first column here 0 0, this is the one value, this is 0 and 0, and the 0 and in the second this is 0 and 1. So you can see the second digit, there is a difference because here it is 0 and it is 1. Okay. Yes, sir. So in that sense, whenever, so in that sense, we just follow the same digit. So same value means the first, that is 0 0. Yes, sir. I think you are not getting till now. सर हम आया क्यों ये समझ गए, लेकिन मेरा रीजनिंग ये है कि जैसे हम सिर्फ आप डायरेक्ट रिजल्ट बताएं कि ए बार बी सी बार है, वो हमको कैसे आ रहा है वो भी हम समझ गए, बट मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे कि हम फर्स्ट वन जो लिखा हुआ है जो कि सेकंड रो फर्स्ट कॉलम और सेकंड रो सेकंड कॉलम है, और हम दोनों का इंडिविजुअल वैल्यू को लेके जोड़ दें तो भी वैल्यू इतना ही आ रहा है, बट आप डायरेक्ट आंसर बता रहे हैं, हम पूरा प्रोसेस के लिए पूछ रहे हैं। क्या बोल रहे जैसे कि तो बोलो। जैसे कि जो वन लिखा हुआ है सेकंड रो फर्स्ट कॉलम में, ये वाला, उसको मैं उसका वैल्यू है ए, उसका वैल्यू है ए बार बी सी बार डी बार, सी बार, और जो सेकंड है उसका है ए बार बी सी बार डी डी। दोनों के जोड़े, दोनों को अगर हम सम करेंगे तो ए बार बी सी बार ही आएगा। हाँ आएगा तो। हाँ, तो वही कह रहे हैं कि ये सर ये दोनों इक्विवेलेंट है या डायरेक्ट आंसर लिखना ही जरूरी है? नहीं नहीं, हम जो बोल रहे हैं जो ये हम this time whatever I am saying, this is for the K-map rule. Okay, so when you are trying to solve the K-map simplification, in that time you just follow these rules. I know that this is the if we sum this block expression and this block expression, after the simplification you will get this expression, that is a bar b c bar. Okay, okay sir. But we are trying to get the simplified from you can say कम टाइम में हमको मिल जा रहा है, इसीलिए हम ये डायरेक्ट हमको ये रूल फॉलो करेंगे तो हम डायरेक्ट मिल जाएगा, या हमको प्लस करके उसका बाद तो सिंप्लीफाइड करना होगा, लेकिन यहाँ पर तो हमको सिंप्लीफाइड करने का कोई जरूरत नहीं है। यस सर, यस सर। तो हम आंसर बोले सर, एक मिनट। यस सर, ठीक है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो कॉमन है इसमें तो जीरो फर्स्ट डिजिट दोनों में कॉमन है, तो इसीलिए हम सी बार लिखे, ठीक है। यस सर। इस जो कॉमन नहीं है तो वो नहीं जाएगा, इसीलिए डी बार नहीं यहाँ पर नहीं है, ठीक है। यस सर, क्लियर। ओके, द नेक्स्ट फॉर द नेक्स्ट ग्रुपिंग व्हाट इज द एक्सप्रेशन? सर ए बार बी सी बार प्लस सी बार डी बार सर। नो, यहाँ पर व्हाट इज द कॉन्सेप्ट दैट, यहाँ पर देखो ये जो ग्रुपिंग है ये चार रो पर ही इन्वॉल्व है, चारों रो पर इन्वॉल्व है। दिस इज फर्स्ट रो, दिस इज सेकंड रो, दिस इज थर्ड रो एंड दिस इज फोर्थ रो। यस सर। तो यहाँ पर क्या है, जब हम एक से ज्यादा रो वाइज हम देखें या कॉलम वाइज देखें तो इन्वॉल्व है, वहां पर हम फॉलो कॉमन डिजिट को फॉलो कर रहा है। तो यहाँ पर हमको रो का जो कॉमन डिजिट देखना होगा, तो 0 0 0 1 1 0 1 1 1 और 1 0, इसमें कोई हमको सेम डिजिट मिल रहा है क्या? यहाँ पर 0 0 0 0 0 1 देखे तो फर्स्ट डिजिट में सेम है, लेकिन उसके बाद यह तो पूरा चारों रो इन्वॉल्व है ना यहाँ पर, तो किसी भी तरह में हमारा कॉमन डिजिट नहीं आ रहा है। किसी भी पोजीशन पर है जो पूरा चार में सेम डिजिट है? नो सर। तो रो पर हमको एक्सप्रेशन नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर कॉलम वाइज देखे तो ये फर्स्ट कॉलम पर है, ठीक है।
ठीक है, फर्स्ट कॉलम पर है ना, चारों चारों जो ये यस फर्स्ट कॉलम पर, यस सर। तो फर्स्ट कॉलम का एक्सप्रेशन होगा, क्या होगा बोलो अभी? सी बार डी बार। यस, सी बार डी बार। ओके, सर यही बोले थे सर हम आंसर। अच्छा, हम समझ में नहीं, सॉरी, तो हम सुनने में नहीं आया यस, इसलिए हम बोल अच्छा कोई बात नहीं सर। ये है एक्सप्रेशन। ठीक है, समझ में आया अभी कैसे ये एक्सप्रेशन इसमें हम रॉ कंसीडर के कर लिए नहीं होगा सर, रहे, रॉ के लिए नहीं होगा अगर कॉमन नहीं मिला तो। कॉमन नहीं मिला तो से जैसे ये कॉलम के लिए सी बार डी बार हुआ तो रॉ के लिए से जैसे कोई कॉमन नहीं मिल रहा है तो नहीं, इसमें नहीं होगा, इसका नहीं कुछ होगा, नहीं होगा, क्योंकि जिस टाइम तुम देखोगे वहां पर जब हम एक बार हम कर रहा है यहाँ पर रो वाइज, एक बार कर रहा है हम कॉलम वाइज, ठीक है, जहां पर देखो जो हम रो वाइज, रो का ज्यादा, एक से ज्यादा रो इन्वॉल्व है तो कॉमन टर्म ही हमको पकड़ना होगा, और कॉलम वाइज हम देख रहे हैं तो कॉलम को वाइज उस टाइम कॉमन टर्म ही हमको पकड़ना होगा कॉलम वाइज। ठीक है, सर लास्ट वाला रो अगर नहीं होता तो भी सर क्या यही वाला एक्सप्रेशन होगा क्या, क्योंकि लास्ट, ऊपर के तीन वाले में भी कोई कॉमन नहीं आ हाँ रहा है हाँ सर। हाँ हाँ, लास्ट में यही होगा। तो सर अगर ये एक्सप्रेशन दिया रहेगा तो सर हम इसको इंडिकेट कैसे करेंगे सर, इसमें रॉ सर 3 होगा या 4 होगा कैसे पता चलेगा सर अगर ये इस एक्सप्रेशन से। एक्सप्रेशन देगा ये एक्सप्रेशन। हाँ सर इस एक्सप्रेशन से कैसे पता चलेगा मेरा सर 3 रॉ इंडिकेट होगा या चारों रो इंडिकेट होगा सर। ठीक है, हम लिख दे रहे हैं, एक मिनट। तुम बोल रहे हैं यहाँ पर ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है, ये 3 रो में तुम बोल सकते हो या 4 में, तो दोनों ही तो सही जो बोल रहे हैं। तो तुम बोलना चाहते हो कौन सा एक्सप्रेशन हम कंसिडर करेंगे? एक्सप्रेशन मतलब कौन सा, 4 तक ब्लॉक जाएंगे या 3 तक यस सर। ना? तो एक मिनट, हाँ, यहाँ पर तुमको समझ में नहीं आएगा ये 3 तक होगा या 4 तक होगा, क्योंकि 3 तक के लिए एक्सप्रेशन सेम है, 4 तक के लिए भी एक्सप्रेशन सेम है। समझ में आ रहा है? जो यस तुम, सर। तो जो तुम एक्सप्रेशन वाइज तुम लॉजिक, वो 3 भी तुम कर सकते हो, 4 भी तुम कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन नॉर्मली तुमको 3 ही करना चाहिए, क्योंकि 4 तुमको तो यहाँ पर हम, तुम जो बोल रहे हैं तुम वो बैक कैलकुलेशन वाला बोल रहा है, इसीलिए तुमको समझ में आ रहा है, जो ये 3 रो में भी तो सेम आ रहा है, 4 4 रो हम कंसिडर कर रहे हैं तो सेम आ रहा है। ठीक है, लेकिन जब तुमको वो एक्सप्रेशन दिया जाएगा तो तुम कंसिडर करोगे तो तुम 3 भी ले सकते हो, 4 भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन तुमको 3 ही लेना होगा, क्योंकि 4 तुम लोगे, तुम पकड़ोगे तो एक्स्ट्रा और भी एक्सप्रेशन आ सकता है। ठीक है, हेलो, सर यहाँ पे अगर हम थर्ड रो को छोड़ दे सर तो इसका वो एक्सप्रेशन थर्ड कुछ रो अलग को, हो जाएगा ना सर। थर्ड रो को छोड़ दोगे, थर्ड रो को तो थर्ड तुम रो को छोड़ ना, थर्ड रो को तो तुम छोड़ नहीं सकते हो, क्योंकि हम तो यहाँ पर हाईएस्ट नंबर ऑफ मिल रहा है ना, तुम थर्ड रो को छोड़ दोगे तो तुम कैसे करोगे? अच्छा इसका सीक्वेंस इसी तरह रहेगा ना सर, सीक्वेंस मतलब, 0 0 0 1 1 1 1 0। हाँ, ये इसी इसका जो इसी आप सीक्वेंस लिखे हैं सर 0 0, 0001 11 0, इसी टाइप का रहेगा इसका सर। हाँ, हम बोले हैं क्यों इसी टाइप का इस सीक्वेंस रहता है। हम और एक दे ओके रहे हैं, सर, ठीक है, अगर एक्सपीरियंसर है तो सर हम 3 ही तक लिखेंगे ना सर। हाँ, हम दे रहे हैं और, ठीक है, तो बोलो क्या होगा? एक मिनट,
Suppose this is A, this is BC. So here what is the 0 0? This is 0 0, this is 0 1, this is 1 1, and this is 1 0. Okay, and for this suppose this is AD. Okay, for this this is like that 0 0 0 1 1 1 1 0. Okay, so I just grouped this one, and I just grouped here this one, and this one, and I just group here on this. You just tell from this block what is the expression, or you just write in the chat box. Okay. I already got one expression answer in the chat box, but I don't know it is right or wrong. Okay, let's check it is right or wrong. First of all, and one thing that I am requesting you all the participants give your attendance in the chat box. Okay, I am just giving you 1 minute, and after that I will discuss these things.
Okay, so here you can see we can make three grouping here. So first one, this is the one grouping. First, this is one, this is two, and you can consider this is three. So for first grouping, what is the expression for first? क्वाड 1 का सर AC होगा सर, Quad उसका सर AC आ रहा है मेरा में, क्वाड 1 का ओनली जो लंबा वाला है सर। लंबा वाला, ठीक है, हम एक एक करके बोल रहे हैं एक्सप्रेशन का, ठीक है, ग्रुपिंग का। जो पहला वाला है, ऊपर वाला हम बोल रहे हैं, ऊपर वाला, तो ऊपर वाला के लिए होगा यहाँ पर A बार D बार, तो यहाँ पर C. 0, हाँ, 1, A बार B बार C होगा ना? yes, this is the for the first, okay, I think सर you are मेरा getting, पूरा देखिए सर, पता है हाँ हम देखे हैं, हाँ हाँ, हम कैलकुलेट नहीं किए हैं, हम सर, कैलकुलेट करके बोल रहे हैं, ठीक है। नहीं सर, Next. वो वाला नेम लिखे नहीं सर, अपने से निकले सर। A ठीक बार है, B बार C प्लस A बार B बार C प्लस A बार B प्लस A B, ठीक है, ये हम निकालिए देख रहे हैं, सर। देख रहे हैं। तो यहाँ पर ओके सर। देखो, नेक्स्ट यहाँ पर तुम देख कंसीडर करोगे तो यहाँ पर हम रो वाइज कोई एक्सप्रेशन हमको नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर ये ग्रुपिंग हमको तीनों रो पर इन्वॉल्व है, बट हियर द कॉमन टर्म इज नॉट, वी आर नॉट गेटिंग द कॉमन टर्म फ्रॉम दिस रो। आई थिंक यू आर गेटिंग द पॉइंट एट दिस मोमेंट, 0 0 0 1 and 1 1. So from this we are not getting. Hello. यस सर। So 1 1. So only from the column, this is 1 1 1 1 means for the second grouping we are getting, that is BC. Am I right or wrong? Yes, sir. For the third grouping, so here you can see the third grouping, the quad grouping. Here actually it is involved in one row, that is the second row, and 1 2 3 and 4th column, all of the columns. So from the row, what is the expression? A bar D. A bar D. A bar D. And from column, from the column we are not getting any expression, because there is no common term or the same term. Yes or no? Yes, sir. यस Okay, सर। so this is the actual expression for this given K-map. सर और एक ग्रुप होगा ना सर, सेकंड रो सेकंड कॉलम का? Second row, second, एक मिनट, second row, हाँ हाँ, सेकंड कॉलम। बिल्कुल बिल्कुल, हम छूट गए, हाँ यह एक कॉलम होगा, बिल्कुल एकदम सही। तो यहाँ पर और एक कॉलम होगा, तो यहाँ पर होगा 0 0 फ्रॉम रो वी आर गेटिंग, दैट इज A bar, and this is B bar C. It is clear or not till now? क्लियर Hello. सर। सर Okay. सर मेरा क्वेश्चन यहाँ पे सर, हमको ग्रुपिंग में प्रॉब्लम हो रहा है। जैसे बोलो, क्यों प्रॉब्लम, यहाँ पे क्या आप बोलो। जैसे ग्रुपिंग में आप बोले थे कि हमको मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट को एक बार में लेना है, जितना मैक्सिमम हो सके। हम वो नहीं, हम बोल रहे हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट को हम एक बार में ले सकते हैं। तो हम जो ये चार जो हम ग्रुपिंग किए थे, तो ये ग्रुपिंग क्या हम और कैसे तुम ये ज्यादा ले नहीं, सकते हो, बोलो। जैसे कि ये जो 4 स्क्वायर है सेंटर में चारों, जैसे फर्स्ट रो में दोनों है और सेकंड रो में जो मिडिल वाला दोनों है, वो चारों को हम एक साथ में एक स्क्वायर में ले लेंगे, वो एक ग्रुप बन जाएगा। गलत बाकी किए हम, सही बोले तुम, हम बाद में छूट गए, इसीलिए हमको बाद में ये, सही बोले तुम, इसका एक्चुअल होना चाहिए, हम यहाँ पर काट दे रहे हैं, ठीक, सही बोले, एक मिनट। ओके सर। हाँ हाँ हाँ, ठीक ठीक ठीक, सही बोले तुम, हम बोल रहे हैं वो, हम वो एक्सप्रेशन छूट गए, इसीलिए हमको वो भी छूट गया, एक मिनट, सही बोले। तो यहाँ पर होगा एक है, ये क्वाड एक है, ठीक है, ठीक है कि ना, ये सर नो, यस सर, यस सर। यहाँ पर Yes, आ sir. जाएगा ये एक क्वाड होगा,
ठीक है, सेकेंड वाला एक्सप्रेशन पर, ठीक है। और एक होगा यस सर, वाला, अभी ठीक है। यस सर, मेरा यही बना था, इसलिए हम बोल रहे थे। भूल किए थे। तो एक्चुअल ये एक्सप्रेशन आएगा, तो सेकेंड में हमको आ रहा था, तो ओनली सपोज इफ यू कंसीडर दिस क्वाड, सो हियर दिस इज इसमें सर ऑक्टेट भी होता है ना? ऑक्टेट भी होता है, यहाँ पर ऑक्टेट नहीं है लेकिन ऑक्टेट होता है। सपोज यहाँ पर हम एक एक और दे दे तो ये ऑक्टेट हो जाएगा, ठीक है। ठीक है सर। हाँ, तो फॉर दिस वी आर गेटिंग दैट इज a bar d plus for this, actually for this the expression is here from row wise this is a bar, and from column wise it is c, second quad, and the third this is here row wise we are not getting, only column wise it is bc, ठीक है। यस सर। So this is the actual expression, okay, and just one thing there is left only, that is the corner concept and the opposite concept, okay। corner और diagonal जो हम पहले कोई एक बोला था, opposite grouping and the corner grouping, okay। So this opposite grouping and corner grouping actually tomorrow we will solve some the K-map expression, okay, and in that class I will discuss the opposite grouping and corner grouping and the don't care concept, okay, and then we will discuss some K-map or problem, okay। So up to this whatever I have discussed for today, is there any doubt? नो सर। सर सर प्राइमरी इम्प्लीकेंट क्या होता है सर? प्राइमरी इम्प्लीकेंट होता है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो हम ये ग्रुपिंग किए हैं इसको बोलता है एक प्राइमरी इम्प्लीकेंट एक्चुअली, या सॉरी यहाँ पर सपोज हम ये किए हैं वन मार्किंग, तो ये है प्राइमरी इम्प्लीकेंट लाइक दैट। तो ये एक्सप्रेशन एक है, ये एक्सप्रेशन और ये एक्सप्रेशन, हम जो ये ग्रुपिंग किए थे इसी के कारण तो हमको ये एक्सप्रेशन मिल रहा है, तीन ग्रुपिंग के लिए तीनों एक्सप्रेशन हमको मिला है। यस सर। तो इसको बोलते हैं प्राइमरी इम्प्लीकेंट, ठीक है। तो ओके सर। up to this for today's class and the next class we will solve some K-math problems, okay। Thank you class।